Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, taking care of soil. Soil. The topmost layer on the surface of the land is mostly covered with soil. It is a valuable natural resource. Plants grow in the soil and many animals make their homes in soil. Perhaps there would be no life on earth without soil because all living things depend on soil for their survival. So we must try to prevent soil erosion and conserve the soil. सॉइल क्या है? आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है लैंड के सरफेस पे, वो आपकी किससे कवर्ड होती है? सॉइल से। और ये बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं, है ना, और प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हमें उनसे क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो कोई भी लाइफ नहीं होती अर्थ में अगर सॉइल नहीं होती, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सॉइल पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस एंड हाउ वी कैन कंजर्व इट। Formation of soil. Soil is formed when rocks break into tiny pieces due to the heat of the sun, moving wind and running water. The breaking down of rocks into tiny particles of soil called weathering of rocks. अब soil कैसे बनी है? Soil बनी है, देखिए, जब rocks जो है वो छोटे छोटे pieces में break हो गई है। किसकी वजह से? सन की हीट की वजह से, आपकी विंड की वजह से, या रनिंग वाटर की वजह से। तो जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसे हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Soil have three different layers. The uppermost layer of soil is dark in color because it contains humus which make the soil fertile. It is called the topsoil. Humus is formed by the decaying of dead animals and plants. Under the topsoil, a light color layer is present. It is called the subsoil. It contains less humus. Below the subsoil, there is a layer of lumps of parent rock. Below this is non-porous, unweathered bedrock. अब soil की ना different layers होती है। जो uppermost layer होती है ये थोड़ा सा डार्क होती है कलर में, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है, तो उसे कहते हैं अपर मोस्ट। आपकी जो लेयर होती है दैट इज टॉप सॉइल, राइट। इसके बाद टॉप सॉइल के नीचे जो आपकी लेयर होती है वो आपकी होती है सब सॉइल, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। सब सॉइल के बाद आपकी एक लेयर आती है जिसमें आपके पेरेंट रॉक के लम्प्स होते हैं, एंड उसके बाद आपका लास्ट में आता है बेड रॉक। एक्टिविटी 1, टू आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल। Things require glass jar, a sample of soil from any place. अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना? सॉइल की डिफरेंट लेयर्स। Method: collect 2 handful of soil from your school or any other place and put it into jar. Pour the water in jar approx 2/3 of its height. Shake the glass jar well, place it on the table and allow it to stand for a few hours. अब आप 2 हैंडफुल मिट्टी ना कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए, अपने स्कूल से कर लीजिए, अपने गार्डन से कर लीजिए, कहीं से भी कर। उसके बाद आप उसके जार में डालेंगे और उसमें लगभग आपने उसकी हाइट का 2/3 उसमें पानी डालना है, एंड देन उसको शेक करना है ग्लास जार को, और टेबल में आप साइड पे रख देंगे कुछ घंटों के लिए। ऑब्जर्वेशन: लुक द कंटेंट ऑफ द jar. What do you see? You will see the particles are settled down. Bigger ones settle down faster than the smaller one. After some time, the various material in the soil have formed the different layers. Lowest layer consists of rock pieces or bedrock. The second layer from the bottom consists of sand particles. The third layer from bottom consists very fine particles, topsoil, and above the topsoil, dark color particle is called humus. Humus is decaying dead remain of plants and animals. Humus is organic matter of the soil. Conclusion: soil contains many layers of particles, rock pieces, sand, fine particles और topsoil and humus. तो देखिए, इसके बाद जब आपको आपने ग्लास जार को रख दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या करेंगे? आपको एक इस तरह से आपको मिलेगा, राइट। तो आपकी जो लोएस्ट लेयर होगी वहाँ पे जितने भी जो हैवी पीसेस होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आपकी जो लोएस्ट लेयर है उसमें आपके क्या है? रॉक पीसेस हैं, जिसे कहते हैं बेड रॉक। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होगी बॉटम से, उसमें आपके होंगे सैंड पार्टिकल्स, एंड जो थर्ड लेयर होगी आपकी वो क्या होगी? बॉटम से। आपको बॉटम से देखना है, ठीक है। तो टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल के ऊपर होगा आपका ह्यूमस। ह्यूमस एक्चुअली आपका क्या होता है? जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसे बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ओके, सो सॉइल में आपके ये जो लेयर्स हैं ये सारी लेयर्स होती हैं। Soil erosion. Soil has many layers. The topmost layer is called topsoil. It is the most fertile layer. Sometimes this topsoil is carried away by strong winds, washed away by heavy rains or flowing water. The removal of fertile topsoil from a region by wind, rain or river water is called erosion. देखिए, सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो टॉप सॉइल होती है, नीचे सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज टॉप सॉइल। अब वही वॉश अवे हो जाती है, अगर वो रिमूव हो जाती है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? तो आपकी बहुत जैसे तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है, या फिर रिवर के वाटर की वजह से।
As a result of soil erosion, the land loses its fertility and makes the land unfit for farming. Land which is affected by soil erosion cannot enough to feed all the living beings who dwell on it. The factors that are responsible for soil erosion are called the agents of erosion. Running water, wind and human beings are the main agents of soil erosion. अब आपकी जो टॉप लेयर है वही हट गई है, टॉप मोस्ट लेयर जिसमें आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो क्या हो गया, सॉइल इरोजन हो गया. अब सॉइल इरोजन की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है. अब लैंड अगर फर्टाइल ही नहीं है तो उसमें किस तरह से प्लांट्स ग्रो करेंगे, और उस आपकी सॉइल में रहने वाले जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किस तरह से उनको खाना मिलेगा. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपके हैं रनिंग वाटर, विंड या फिर ह्यूमन बींग्स. Do you know what? It takes almost 500 years for nature to make 1 inch of topsoil. आपको पता है सिर्फ 1 इंच जो टॉप सॉइल है उसको बनने में 500 साल लगते हैं. Agents of soil erosion. Erosion by water. Heavy rain or running water washes away topsoil causing soil erosion. Heavy soil erosion occurs in hilly areas as water flows rapidly. As it flows, the water carries soil with it and takes the fertile soil away. When the river reaches in the plains, it slows down and the soil is deposited at the bottom of the river. This is called silting. This also happens when a river gets flooded with water. The river water removes the topsoil of all the field near the river bank and carries it away, causing soil erosion. Heavy rains also cause soil erosion. अब सबसे पहले एजेंट की अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की तो वो है वाटर. कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, ये जो रनिंग वाटर है वो टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाता है, और आपका हैवी सॉइल इरोजन होता है हिली एरियाज़ में, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, राइट. और उसके बाद क्या करता है, तेज़ी से फ्लो करेगा तो फर्टाइल सॉइल अपने साथ लेके चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये जब रिवर नीचे आपके प्लेस में पहुंचती है तो स्लो डाउन हो जाता है और जो सॉइल है वो रिवर के बॉटम में पहुंच जाती है, इसे बोलते हैं सिल्टिंग, राइट. अब इसके बाद और इससे कैसे होता है, जब रिवर जो है अब जैसे बाढ़ आ जाती है, राइट, उसमें बहुत पानी आ जाता है तो रिवर जो क्या होता है, रिवर वाटर की वजह से जब लैंड में चला जाता है पानी या आपके फील्ड में चला जाता है तो टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है, तो इससे सॉइल इरोजन होता है. एक्टिविटी 2, erosion by water. Things required to any metal tray, to water pipe, to empty container. ये चीज़ें आपको लेनी है. चलिए, what is the method? Take 2 trays of same shape and size. In the first tray, put some loose bare soil from the field with no grass cover. In the second tray, put an equal amount of soil from a lawn with green grass over it. Now apply the water pipe in both the tray. Be aware that the flow of water in both tray should be equal. Collect the water that overflows from both trays in 2 separate beakers. Now compare them. आपने क्या करना है, 2 इक्वल ट्रेज लेनी है, सेम साइज की लेनी है. अब आपने एक में क्या डालना है, एक में मिट्टी डालनी है, सेकंड में भी डालनी है, बट फर्स्ट में आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ सैंड डालेंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं डालेंगे, और सेकंड वाले में आपका थोड़ा सा ग्रास कवर होगा. इसके बाद अपनी पाइप से क्या करना है, दोनों ट्रे में पानी आपने डालना है. इसके बाद जितना भी आपकी जो मिट्टी जो होगी पानी से जो बह जाएगी उसे आपने कलेक्ट करना है दोनों ट्रे से, और अब उसके बाद आप उसे कंपेयर करेंगे. Observation. We find the water from the first tray with no grass has more soil in it, but the water from the second tray with grasses have very little soil in it. और जब आप मिट्टी को कंपेयर करेंगे ना तो जिस ट्रे में आपके सिर्फ पानी था, ग्रास कवर नहीं था, वहाँ से ज़्यादा मिट्टी आई है, जबकि सेकंड वाले में जिसमें ग्रास था, कवर था, उसमें थोड़ी ही सॉइल आई है. कंक्लूजन, दिस शोज दैट प्लांट्स हेल्प टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. तो इससे ये शो होता है कि प्लांट जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. Erosion by wind. In open lands, strong wind causes soil erosion. Wind blows away the topsoil. In the desert area, a lot of sand is blown away by wind. In fact, a whole sand dunes shifts from one place to other due to wind. Whenever strong wind blows the topsoil from a field, the farmers are badly affected because the roots of the plants are remain bare and they die. The manure also gets blown away by the wind. देखिए जब ओपन लैंड में बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है. आपके डेजर्ट में जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वहाँ पे सैंड ड्यून ही शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे. तो चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं. Things require 2 metal tray, 2 water pipes, 2 empty container. Method. Take the similar setup as an activity 2, blow strong air or wind over the 2 trays by switching on a table fan. अब आपको क्या करना है, सेम सेटअप लेना है जैसे आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, है ना, दोनों ट्रेज लेनी. अब आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से आपको ये फैन बना के दिया हुआ है ना, फैन रखना है, फैन के बगल में आपने रखना है. उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो सॉइल है वो उड़ती है. Observation. We find that a lot of bare soil is blown away by the strong air current produced by the table fan, but the soil that is grass covering is not carried away by the wind. Conclusion. This shows that plants prevent soil erosion.
अब आपके पास क्या था, एक ट्रे में आपके खाली सॉइल थी और दूसरे में ग्रास कवर था, तो जिसमें आपकी सिर्फ सॉइल थी उससे ज़्यादा आपकी मिट्टी उड़ेगी, एंड जिसमें ग्रास कवर था उसमें से नहीं उड़ेगा या बहुत थोड़ा सा। तो इससे क्या शो होता है कि जो प्लांट है वो सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं। नाउ इरोशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. Many human activities also cause soil erosion. Some of them are deforestation. Excessive cutting of trees in a forest is called deforestation. When trees and flowers are cut down, the topsoil becomes loose. It can easily be carried away by strong winds or running water. अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। उसमें सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज को आप बहुत लार्ज स्केल में काट रहे हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं तो क्या होगा, अब सॉइल को कौन होल्ड करके रखेगा, प्लांट्स की रूट्स ही तो होल्ड करके रखती हैं, तो इसलिए तेज हवाएं चलेंगी या रनिंग वाटर की वजह से फिर क्या होगा, सॉइल इरोशन हो जाएगा। Overgrazing. Overgrazing by cattle reared by human for the use leads to the destruction of plant. Once the natural cover of plant is lost, the land becomes exposed to wind and flow water leading to its erosion. कई बार क्या होता है कि ओवरग्रेजिंग की वजह से भी होता है, जैसे कैटल ओवरग्रेजिंग कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि नेचुरल जो कवर है प्लांट का वो लॉस्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो लैंड, फिर हवा चलेगी या फिर आपका पानी बहेगा तो उसके बाद वो टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी। Soil conservation. Prevent the soil from its erosion is called soil conservation. As you know that soil is an important natural resource of us, so we should try to protect it. Soil erosion can be prevented in the following way. देखिए soil हमारे लिए बहुत ही important है, इसीलिए हमें इसे erosion से बचाना है। तो उसके बहुत सारे आपके methods हैं, तो सबसे पहले afforestation. Growing plants and trees on a large scale is called afforestation. As the trees have to be cut down, the forest for various needs, new plants should be replaced them. In this way, deforestation can be prevented. When the land is not used, it is good to grow grass or some other plants to bind the soil particles together. This helps us to stop soil erosion. सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि प्लांट्स एंड ट्रीज को लार्ज स्केल पे ग्रो करना, राइट? अगर हमें किसी पर्पस के लिए हमें थोड़े से फॉरेस्ट को कट करना भी पड़ रहा है तो हमें फिर क्या करना है, उतने ही हमें या उससे ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, आपका डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। और आपका जैसे कि अगर कोई लैंड यूज़ नहीं हो रही तो उसमें कुछ ग्रास या प्लांट्स लगा देंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बाइंड रहेंगे। Avoid overgrazing. We should avoid the grazing of animals in same field. If they would graze in same field again and again, the field will lose its fertility and the land will be barren at a time. इसी तरह से ओवरग्रेजिंग से भी हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है। कैसे करेंगे, एक ही फील्ड में अगर जो है कैटल ग्रेज करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करेंगे, तो इसीलिए हमें ओवरग्रेज को भी अवॉइड करना है। Construction of dam and embankment. Running water carried away a large portion of topsoil during flood. If we make dam and highly raise the bank of the river with rock and stones on both sides of river, then it would help to prevent the flood. देखिए रनिंग जो वाटर होता है वो काफ़ी सारा अपने साथ टॉप सॉइल लेके चला जाता है फ्लड के दौरान। तो अगर हम जैसे कि डैम बना देते हैं या फिर एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि फ्लड प्रिवेंट होती है। इफ़ फ्लड विल be prevented, the soil erosion will be prevented itself. अगर हम बाढ़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सॉइल इरोजन दैट विल बी प्रिवेंटेड। Step farming. On the hilly slopes, the flow of rainwater is very rapid and forceful. It carries away a lot of fertile topsoil. Hence, farming is done by cutting steps in the slopes. This method is called terrace and step farming. If you follow these steps, then the speed of water as it flows down and reduce soil erosion. Also, the soil eroded from one step is deposited on the next step. This further reduce a loss of fertile topsoil. देखिए hilly एरियाज में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ रेन वाटर होता है काफ़ी रैपिड और फोर्सफुल होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होगा तो क्या होगा कि बहुत सारी जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो कैरी अवे हो जाएगी। तो फार्मिंग यहाँ पे फिर क्या करते हैं, स्लोप्स को कट कर दिए जाते हैं स्टेप्स में, इस तरह से की जाती है। इसको कहते हैं स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग। जो पानी फ्लो करेगा फिर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा एंड इसकी वजह से फिर आपका टॉप सॉइल का रिमूवल नहीं होगा। In the poetry language, the earth often say that I love the green colors, so cover me with green plants. इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ क्या कहते हैं कि उसे ग्रीन कलर पसंद है, इसीलिए उसको ग्रीन प्लांट से कवर करें। Let us recall. The topmost layer of the land surface is called soil. Soil formed by breaking of rocks due to the heat of the sun, rain and wind. Soil has 3 layers, topsoil, subsoil and bedrock. Soil आपको पता है उसके 3 layers होते हैं। Topsoil is removed by the water and wind is called soil erosion. Protection of soil erosion is called soil conservation.
टॉप सॉइल का अगर रिमूवल हो जाता है वाटर या विंड से तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। एंड सॉइल इरोजन की जो प्रोटेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के वो से हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अफॉरेस्टेशन, स्टेप फार्मिंग, एम्बैंकमेंट ऑफ द रिवर प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ये सारे ही मेथड जो है आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।